चलिए, सो प्रियांशु तू फर्स्ट क्लास में था ना, फरार था? सर वो थोड़ा उठने में लेट हो गया। हाँ नहीं, मैं देखा तो तू नहीं था तो। मैं 15 मिनट लेट था, लेकिन आप इन नहीं कर रहे थे लास्ट टाइम, तो लॉग इन नहीं किया। ओके, चलिए, तो नाउ अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको बैक ऑफ द माइंड ये ध्यान रहना चाहिए कि जो मैमालियन नर्वस सिस्टम है, जो वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम है, वो हॉलो है। ओके, बस उसको आप बैक ऑफ द माइंड याद रखेंगे दैट वो हॉलो एरिया होता है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे ए, सो दैट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, this is called the cerebral cortex. Now the outer surface of cerebrum called cortex is made up of only 2 to 4 millimeters thick. Okay, 2 to 4 millimeters thick, because the 6 layers of it are packed with 10 billion, okay, 10 billion pyramidal, spindle and stellate neurons. Stellate shape, actually इसका मतलब है shape, neurons with a grayish brown appearance. Okay, so it is referred to as gray matter. ठीक है, now why grayish brown appearance आएगा? So इसमें ब्रैकेट लिखिए, as it is rich in non-myelinated neuron, as it is rich in cell bodies of all neurons and cell processes, axons of non-myelinated neuron. तो समझ रहे हो? तो माइलिन एक्चुअली क्या होता है? वो चर्बी होता है। तो चर्बी से कौन सा कलर आ जाएगा? व्हाइट। तो इसीलिए यहाँ चर्बी नहीं होता है। ओके, सो इट इज रेफर्ड टू एज ग्रे मैटर। ओके, नाउ the cerebral cortex contains roughly 10% of all neurons of brain. अगर 100 बिलियन न्यूरॉन्स है तो यहाँ 10% होगा। Now much of the neural activities occur here. Example, from the touch of a feature to the movement of an arm. ठीक है, तो सारा कुछ आपका इधर होगा। Now, unlike mouse brain, the human brain is greatly convoluted. ओके, तो ये हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, सिंपली हम लोग लिखेंगे ह्यूमन ब्रेन is greatly convoluted. Okay, these convolutions or folds consist of sulci. Okay, sulci ब्रैकेट रे, इसको क्या बोलेंगे? डिप्रेशंस। ओके, एंड उसका जो सिंगुलर होता है वो सल्कस होता है। ओके, ओके, उसके बाद सल्सी कॉमा फिशर्स। फिशर्स का मतलब होता है लार्ज ग्रूव्स। सल्कस को हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल ग्रूव्स, फिशर्स है लार्ज ग्रूव्स, एंड गायरी या गायरस। ओके, दिस इज
bulge between adjacent cells. ओके, bulge या उसको हम लोग सिंपली एलिवेशंस बोल सकते हैं, एलिवेशंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स और फिशर्स. ठीक है. नाउ these greatly enlarge the surface area of the cortex. देखो कितना बकवास स्टेटमेंट लिखा हुआ है. इसको लिखना चाहिए ऐसे, दिस इज बिकॉज ऑफ द greater surface area of the cortex and which has to be packed in a small volume. समझ रहे हो? जिस तरह मम्मी अपना साड़ी खुला नहीं रख सकती है घर में, तो उसे पैक करना पड़ता है, तो पैक करने के लिए फोल्डिंग करना पड़ता है. So this is because of the greater surface area of the cortex and which has cortex which has to be packed in a small volume. ठीक है, तो इसीलिए आपका फोल्डिंग होता है. Understood? In fact, 2/3 of the surface area of the cortex is hidden in the Salsian fishes, not 2/3. यह है 95% of the surface of the cortex is hidden in the क्या? In the Salsian fishes. मतलब जो आपको दिख रहा है वो सिर्फ 5% है, एंड जो अंदर रह गया वो है 95%. Thus, okay, so this is the case. ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है. Now beneath this run millions of axons comprising nerve fiber tracts connecting the neurons of cerebral cortex with those located elsewhere in the brain. Okay. So the large concentration of myelin gives this tissue an opaque white appearance. Hence, they are referred to by the term white matter or cerebral medulla. ठीक है, और cerebral medulla. By examining the effect of injuries, lesions, and the effect of electrical stimulus on the behavior, it has been possible. Okay, it has been possible to map roughly the location of its various associative areas of the cerebral cortex. Each area is referred to as the specialized cortex. Okay. Now there are three kinds. There are three general kinds of cortex: sensory, motor, and associative. सेंसरी एरिया कौन सा था बताइए? तो चलो हर जगह है. सेंसरी एरिया को हम लोग प्राइमरी एरिया भी बोलते हैं. ठीक है. मोटर एरिया एंड एसोसिएशन एरियाज. एसोसिएशन एरियाज भी बोलेंगे. ओके. तो सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएशन. सुनिए क्या करेंगे आप. मैंने हाउ वी केम टू नो अबाउट दिस. एक बहुत ही खूबसूरत रिसेंट डिस्कवरी था लुई सोकोलॉफ. ओके. लुई सोकोलॉफ एक साइंटिस्ट हैं. उन्होंने क्या डिस्कवर किया बोलिए? उन्होंने डिस्कवर किया पेट स्कैनिंग. डू यू नो व्हाट इज पेट स्कैनिंग? पीईटी स्कैनिंग. जैसे सीटी स्कैनिंग होता है वैसे पेट स्कैनिंग होता है. पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफिक स्कैनिंग. ओके. पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफिक स्कैनिंग. अंडरस्टूड?
तो ये जो पेट स्कैनिंग करके हम लोगों ने सारा कुछ ढूंढ के निकाला। नाउ अब क्या है देखो, सपोज ओके आपको वो स्कैनिंग, हैव यू सीन अ सीटी स्कैन मशीन? टीवी पिक्चर में देखे हो सीटी यस स्कैन मशीन? यस सर। वो एक टनल जैसा होता है जिसके अंदर आपको घुस के जाना होता है कि नहीं? तो वो जो टनल जैसे में आपको घुस को जाना होता है, उसमें आपको चुपचाप सुला देंगे, छोड़ देंगे आपको वैसे ही 10-15-20 मिनट तक शांति से, कुछ नहीं होगा। तो व्हेन कुछ नहीं हो रहा है तो ब्रेन एक्टिव होगा ना नहीं होगा? बोलो। ना सर। नहीं होगा। अब आपको पॉजिट्रॉन सोर्सेस खिला देंगे। सपोज आपको एक बिस्किट खिलाया था, उसमें पॉजिट्रॉन सोर्सेस होता है। व्हाट आर पॉजिट्रॉन? यू नो, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 0, चार्ज होता है -1। उसी एंटी तरह मैटर। हाँ एंटी मैटर। हाँ, तो एंटी फैंटी मैटर हो तुम जानो। तो जो पॉजिट्रॉन होता है दैट इज 0e+। ओके, तो पॉजिट्रॉन में चार्ज होता है +1 बट मास होता है 0। समझ में? तो इसीलिए ये जो पॉजिट्रॉन का सोर्स तुम्हें खिला देंगे, तुम्हें जो ग्लूकोज पानी देंगे या सब कुछ खाने को देंगे, उसमें पॉजिट्रॉन होगा। अब तो पॉजिट्रॉन क्या होगा, ग्लूकोज में अगर देंगे तो जहां भी आपका एक्टिविटी होगा वहां ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, तो वो फिर टू 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 करेगा। ओके, तो इट विल शो साइंस। तो अब जब तुम चुपचाप सो रहे हो 15-20 मिनट से, अब वो क्या करेंगे, तुम्हारा पैर का अंगूठा टच करेंगे। तो जैसे ही टच करेंगे तो सिग्नल जाएगा ब्रेन को, तो किस जगह गया उसको वो ट्रेस करेंगे। तो वो हो गया क्या, सेंसरी एरिया टू द लेग, है कि नहीं? उसी तरह से आपको रेड लाइट दिखाएंगे एंड देखेंगे कि कहाँ वो जलता है एंड सो ऑन। अंडरस्टैंड? इस तरह से अलग अलग एरियाज को उन्होंने ढूंढ के निकाला। तो जो एरियाज हम लोगों ने कल बनाया था, ठीक है, तो उसको अभी हम लोग लिख लेंगे। सो अब हम लोग उसको रेड में लिखेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल फिशर तो हमने ऑलरेडी कर दिया। नाउ ईच cerebral hemisphere is divided into 2 parts। कौन कौन सा? ब्रैकेट है फ्रंटल एंड पैरिएटल। ओके, बाय द मैक्स तक नहीं जाना था। फ्रंटल्स एंड पैरिएटल्स बाय द क्या, सेंट्रल सल्कस। ओके, और रोलैंडिक सल्कस। बाबा नहीं जावा, रोलैंडिक सल्कस। ठीक है, तो सेंट्रल सल्कस या रोलैंडिक सल्कस। ठीक है जी। तो वो उसको 2 हाफ में बना देगा ना। फ्रंटल, ओके, फ्रंटल लोब इज इक्वल टू मोटर, ओके, इन फंक्शन, एंड जो पैरिएटल लोब इज इक्वल टू क्या, पैरिएटल लोब इज इक्वल टू सेंसरी इन फंक्शन। समझ रहे हो? तो इसलिए सेंट्रल लोब, आप सेंट्रल सल्कस, ये 2 ब्रांच कर देता है। इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। तापरे ओके, उसको हम लोग क्या करेंगे, तापरे the cerebral lobe is divided into 2 parts। क्या, फ्रंटोपैरिएटल, फ्रंटोपैरिएटल एंड टेम्पोरल बाय द क्या, इसको हम लोग कहेंगे बाय द
हॉरिजॉन्टल फिशर या फिशर ऑफ सिल्वियस या सिल्वियन फिशर, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद उसमें हम लोग लिख सकते हैं फ्रंटल वंटल तो हम जानते हैं, तो टेम्पोरल, ओके, तो फ्रंटो पैरेटल तो हमें मालूम है, तो टेम्पोरल लोब इज कंसर्न विथ क्या, इज कंसर्न विथ हियरिंग, कॉमा, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये आपका जो है विथ रेस्पेक्ट टू ये हो गया, ठीक है जी। अभी इसको थोड़ा काट देते हैं, इसको हम लोग बैक कर देते हैं, इससे ना एक लाइन जगह खाली हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपका हो गया अबाउट द क्या, टू पार्ट्स बाय द हॉरिजॉन्टल लोब। उसके बाद इधर करेंगे द पैरिएटल एंड occipital lobes are separated by the क्या, parieto-occipital sulcus, okay, are separated by the parieto-occipital sulcus, ठीक है। तो the occipital, okay, the occipital lobe is concerned with the what, बोलिए, विजन, ओके, तो ये विजन रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमने जो मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लिया, बाकी वो तो हमने ऑलरेडी लिख लिया था, when we had already drawn the diagrams कि कौन कौन सा एरिया क्या क्या करता है, ठीक है। तो इसमें 10 बिलियन को हाईलाइट कर देंगे, ग्रे मैटर को हाईलाइट कर देंगे, सो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ओके। 10% ऑफ ऑल न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन, तो सल्सी, गायरी एंड फिशर्स, ठीक है। 90% hidden in sulci fissures and cerebral medulla, ठीक है। चलिए, ओके, सो ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, तो ये आप तो हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, तो इसको हाईलाइट करने से भी चलेगा, नहीं करने से चलेगा। तो रोलैंडिक सल्कस का नाम है फिशर ऑफ सिल्वियस, ओके, हियरिंग बैलेंस इक्विलिब्रियम, फ्रंटल जो है पैरिएटल है सेंसरी, फ्रंटल है मोटर, ये है विजन, ठीक है जी, मजा आ गया। सो अब हम लोग चलेंगे आगे, तो इसलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई अलग अलग लोब्स क्या क्या करता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ओके। सो फंक्शन of the different lobes of the brain, okay, bracket रे cerebral cortex, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम लोग एक टेबलवा बनाएंगे, है कि नहीं। तो टेबलवा में हम लोग इधर बनाएंगे जो लोब, ओके, तो ये लोब बनाएंगे एंड इधर उसका फंक्शन वाला लिखेंगे। तो सबसे पहला जो लोब है
वो कौन सा लोब है? सामने वाला, फ्रंटल लोब। ठीक है, तो जो फ्रंटल लोब है वो करता क्या है? तो आपको हमने डिस्कस किया था कि नहीं, जो फ्रंटल लोब, तो वो सारा का सारा जो काम करता है, तो इसलिए उसको हम लोग लिख लेंगे, समराइज कर देंगे उसको। ओके, सो ये आपका क्या करता है? इनर मॉनिटरिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ थॉट्स एंड एक्शन, creative ideas, translation of perception and memories into plans of muscle movement, reality testing by judgment, intellectual insight, ability to abstract reasoning, decision making, expression of emotions, willpower, personality। तो ये सारा कौन करेगा? ये आपका जो है, ये सब बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे? कहाँ गया? So basically motor activities। ठीक है, तो बेसिकली मोटर एक्टिविटीज। देखो, जैसे ये प्लान्स ऑफ मसल मूवमेंट, प्लान्स ऑफ मसल मूवमेंट का कौन सा एग्जांपल बताओ तो देखते हैं। प्लान्स ऑफ माने जो आपका जो थॉट है उसको प्लान्स ऑफ मसल मूवमेंट, तो उसमें क्या हो जाएगा? ये मोटर हो गया। तो इसका एग्जाम्पल बोलिए, ब्रोका स्पीच एरिया। तो आप क्या सोच रहे हो वो बकोगे। ओके, उसी तरह से आपका जो टेस्ट एरिया, आपने क्या सोचा और क्या किया, तो ये सब उसका है। ठीक है, ये हमने समराइज कर दिया उसका फंक्शन, तो इसलिए आपको इस तरह से ये दिख रहा है। तो उसके बाद आ जाएगा ये पैरिएटल लोब। फाइन, सो दिस इज द पैरिएटल लोब ना। पैरिएटल लोब क्या करेगा? तो वो मोस्टली सेंसरी होता है कि नहीं, या उसको मेमोरी एरिया कह सकते हो। तो मोस्टली सेंसरी इन फंक्शन एंड रिच इन सेंसरी एसोसिएशन एरिया। ठीक है, तो अब उसमें हम लोग का क्या क्या काम होगा? तो इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो? registration of sensory perceptions of touch, pain, heat, cold, knowledge about space। ये कौन सा एरिया है बताइए? नॉलेज अबाउट पोजीशन इन स्पेस। इसको हमने क्या लिखा था कल? 3D 3D special. स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स एरिया। ठीक है, टेकिंग इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजिंग इट एंड कम्युनिकेटिंग टू रेस्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, इसमें एक और चीज भी लिख सकते हैं कि आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स बाय फीलिंग इट। तो इसको हमने क्या लिखा था? स्टेरियोग्नोसिस एरिया। ठीक है, तो ये आपका सब पैरेटल लोब का फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब, इसका मेनली क्या है फंक्शन? इसका मेन फंक्शन है हियरिंग, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। ओके, तो उस चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो टेम्पोरल लोब का मेन काम है हियरिंग, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, इसलिए आप उसको लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन एरिया बोल सकते हो। डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड लैंग्वेजेस, साउंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, स्मेल मेमोरी एंड इमोशन। ओके, स्मेल मेमोरी एंड इमोशन। ठीक है, इमोशन का मतलब कौन सा एरिया है बोलिए? लिम्बिक एसोसिएशन, याद है? तो इसलिए बिहेवियरल एस्पेक्ट, तो इमोशन इज अ बिहेवियरल एस्पेक्ट।
और इसको हम लोग बैलेंस एरिया या मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, तो इस तरह से है एक्टिविटीज। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या, आपका ऑक्सीपिटल लोब। तो ऑक्सीपिटल लोब का क्या काम है? ओके, ऑक्सीपिटल लोब। तो जो ऑक्सीपिटल लोब है, ओके, तो ऑक्सीपिटल लोब है विजन। सो इसको हम लोग कहेंगे विजन एंड विजन एसोसिएशन। So decoding and interpretation of visual information, and so shape, size, color, etc. ठीक है, तो ये हमारा हो गया फंक्शंस ऑफ व्हाट, सेरेब्रम इन ए नटशेल। बाकी तो हम लोगों ने डायग्राम में लिख ही लिया था, तो उसको आप इसके साथ पैरेलल कर लेंगे। आ गया मजा? चलिए, तो ये आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सेरेब्रम का पार्ट है। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद आ जाएगा डायनसेफेलॉन। तो डायनसेफेलॉन, so the diencephalon contains the epithalamus, thalamus, hypothalamus. Okay, epithalamus is thin non-nervous roof of diencephalon. Its anterior region is folded and fused with pia mater to form anterior choroid plexus. Choroid plexus, okay, this is responsible for the formation of CSF. तो याद रखना। ओके, तो CSF इससे बनता है। Above it is present pineal stalk. Pineal gland होता है bearing the pineal body at the top of it. Pineal body is an endocrine gland, है कि नहीं? तो is an endocrine gland and also taken as vestigial, a vestige of थर्ड आई। तो पिनियल को हम लोग थर्ड आई का वेस्टिज भी बोलते हैं। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन हार्मोन, नोबेल प्राइज मिला हुआ है पिछले साल। इट प्रोड्यूसेस मेलाटोनिन हार्मोन। क्या करता है? विच मेंटेन्स डेली रिदम्स। ओके, तो ये आपका रिदम मेंटेन करता है। उसके बाद है थैलेमस डायरेक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम, ये सब आपका रिले सेंटर हो जाएगा। ओके, तो दे आर नाउ रिले सेंटर। बेटा समझ में आया? तो ये आपका रिले सेंटर होता है। तो इसको भी हम लोग इधर ले आते हैं। तो पिनियल बॉडी को नीचे ले जाते हैं। फाइन, rhythm spinal cord to appropriate parts of the cerebrum, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। हो गया। तो इसीलिए बेसिकली जो आपका थैलेमस है वो रिले सेंटर का काम करता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर।
Limited sensory awareness of pain, temperature, touch and pressure, okay, is provided by thalamus. ठीक है, ये थैलेमस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। एंड लास्ट में आपका है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है? तो हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है एंड उसको हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ द मास्टर। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस इज ए ग्लैंड विच कंट्रोल्स द पिट्यूटरी। तो इसलिए हम लोग इसमें हाइपोथैलेमस को मारेंगे। नाउ हाइपोथैलेमस में क्या लिखेंगे? एज द नेम इम्प्लाइज, हाइपोथैलेमस nestles at the base of thalamus and so of the brain. ये नीचे होता है। Although relatively small, just 4 grams, about a kg of total brain mass, is highly vascularized. It integrates and controls the visceral activities. The hypothalamus, through its connection with brain stem, maintains homeostasis and the body's internal equilibrium, specializing in involuntary behavior control. Okay. The nuclei innate signal the body to eat, drink, get angry, keep cool, make love and so on. न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है? जो उसका ग्रे मैटर होता है। So hypothalamus organizes behavior related to survival of species, fighting, feeding, fleeing, mating. Okay, it keeps body temperature at roughly 37 degrees centigrade by means of complex thermostat system. Okay, it also influences the respiration and heartbeat and sends out signals to correct them when they are wrong. ठीक है, तो ये उसको when they are wrong. Now through connections, okay, with the pituitary gland, the hypothalamus controls सारा activities और क्या? Growth and sexual behavior. Okay, growth and sexual behavior. It also controls many more functions. Okay, by interacting with the क्या? With the pituitary gland. It also behaves as an endocrine gland and तो ये भी endocrine gland and brings about neuroendocrine integration. ओके, ये न्यूरो एंडोक्राइन इंटीग्रेशन को ये लाता है। ठीक है जी, तो सो nowadays it is also referred to as क्या? Master of the master endocrine gland. ओके, पहले पिट्यूटरी को हम लोग मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, तो इसलिए आज हम उसको क्या बोलते हैं? मास्टर का भी मास्टर। ओके, मास्टर ऑफ द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो ये आपका हो गया ब्रेन, फोर ब्रेन, स्पेशली डायनसेफेलॉन खत्म। तो उसके बाद बच गया हमारा कौन सा पार्ट? दैट इज कॉल्ड योर, आपको नहीं लोग क्या सो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल्फैक्टरी लोब, है कि नहीं? सो थर्ड पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब और राइनेनसेफेलॉन।
ठीक है, राइननसेफेलॉन। सो ये लेस डेवलप्ड होता है, मीन्स ह्यूमंस में एक्चुअली इट इज लेस डेवलप्ड एंड दैट इज वाई उसका उतना ज्यादा वर्क नहीं होता है। फाइन। सो उसका मेन फंक्शन क्या है? टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्मेल। ठीक है, सो इसीलिए उसको हम लोग लिख लेंगे। सो लेस, ओके, less developed in brain, okay, it is the क्या sensory smell area, less developed in the brain of man, okay, humans, okay, सब में नहीं, it is the sensory smell area and receives informations from the olfactory receptors in the olfactory epithelium। इसको हम क्या कहते हैं? स्नेडेरियन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां से ये खबर लेता है। It is the sensory smell area and receives information from the olfactory receptors in the olfactory epithelium. Okay, olfactory epithelium। उसके बाद क्या करता है? Then it sends and stores sensory data in the temporal, okay, temporal lobe of the cerebrum। कौन सा? इसको हम लोग क्या कहते हैं? olfactory या smell association cortex, okay, comma, which lies just above the olfactory lobe। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी लोब के ऊपर आपका सेरेब्रम जो पार्ट है वो आपका ऑल्फैक्टरी एसोसिएशन एरिया है। तो इट सेव्स द डाटास, okay, then it sends this and stores sensory data in the temporal lobe of the cerebellum, olfactory association area, okay। तो it decides what is smelled on the basis of